کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا. میری بات تو بہت بعد میں آتی ہے، لیکن آج جب میں نے ججز کے ریمارکس سنے اور جب میں نے آج بالکل ریورسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا، تو مجھے پورے ہیئرنگ میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر، جھوٹ بولا، بہتان لگایا، 6 سال اسی میں گزر گئے. آزمائش تھی، لمبی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا. اور جھوٹ کی شیلف لائف ہوتی ہے، کچھ سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا. تو سب سے پہلے تو میں آجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے وکلاء کا، خصوصاً جو میرے پہلے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب. میں خصوصاً امجد پرویز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے میرا جتنی محنت سے، جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا، ایمانداری سے. میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے. السلام علیکم. جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. This is very bad actually. تھینک یو Very ویری bad. مچ انکل. آپ کو بھی مبارک. پریس کانفرنس کے دوران کیسے آپ کال لے سکتے ہیں؟ ویری بیڈ. عمران خان بھی لیتا تھا تو وہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، وہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. میں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ کی آزمائش آئی، 6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس ہوگا جس کے پاس کہنے کو کیا ہے. اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہے، میری زبان پہ تالا لگا رہا، کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا، ججز کے سامنے تھا، تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، آج فیصلہ آیا. اب میں اس کے اوپر ڈیٹیل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی 1-2 دنوں میں. لیکن دیکھیں، میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناکام بھی کیا، تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا، تمہیں سازشی بھی ثابت کیا. اب تم کیا کرو؟ تم جتنی چاہے جھوٹی تعبیریں لے کر آؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو، اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا. آپ ڈار صاحب کو دیکھ لیں. ڈار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لکھا ہے. جنہوں نے ان پر الزام لگایا، انہی کے صدر نے ان سے اوتھ لیا، اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بس شخص ہو، تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی. اور آج تم جواب دو نہ دو، تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر. اب آپ آ جائیں وہ جو کل دیکھیں، جھوٹا تو وہ ثابت ہوا. میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو ڈیل ہوئی ہے. میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے. میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی، کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے، جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر جو اس پہ ثابت کیا ECP نے، ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی، انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے، وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا، جب اس کو ووٹ
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर उसको पता चल गया कि ये कामयाब होने वाला है, जब उसने जो मिन्नतें और वो जो उसने की थी लोगों की वो कामयाब नहीं हुई, उसको पता चल गया कि मेरे अपने अरकान मेरे खिलाफ हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है, तो उसने साजिश का ये ड्रामा रचाया पूरी कौम के सामने। और आप देखिए कल की मतलब इतनी संगीन वो बात है, वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा, और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा। इसमें हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है, अवाम की तकदीर से खेलना है। ये अवाम 22 करोड़ अवाम जीती जागती अवाम का मुल्क है, हमने सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलना है, हमने सिर्फ खेलना है। और वो कहते हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में अपने मुताबिक कर लूँगा, यानी कि आप एक इतने इम्पोर्टेंट नेचर के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, आप टैंपरिंग कर रहे हैं और आप खेल रहे हैं, उसको खेल कह रहे हैं। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। आप ये देखें कि वो अभी तक कज़ाफी स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकला, उसने इस मुल्क को या ओवल स्टेडियम समझा रहा है क्योंकि ये वहाँ से आए, या कज़ाफी स्टेडियम समझा हुआ। वहाँ पर भी टैंपरिंग करता था, यहाँ पर भी वो उसको कह रहा है कि टैंपरिंग करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं? क्या जो खारजा अमूर है, फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो खेल है? और आप ये देखें कि वो अपनी पूरी जो उसको इक़्तिदार छोड़ के उसको लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ, उसने जाल साजी की, मक्कारी की, साजिश का पूरा ड्रामा क्रिएट किया। और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, लोगों को कहता है गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, आज़ादी के भाषण देता है। और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है, और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। तो ये एक पैटर्न है। आप ये देखें कि जो इंसान किस तरह ये जो पैनामा वाली साजिश के थ्रू इक़्तिदार में आया, RTS बिठाया अपने इक़्तिदार की खातिर, उसके बाद फॉरेन फंडिंग ली गैर मुल्की कुव्वतों से, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सबने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये खत लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके खत लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सवाए हैरानी की। और आप ये देखिए कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आजम खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खड़ी प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है? वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया, तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, अपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज पे? जाल साजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जाल साजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला, और आपका चीफ ऑफ स्टाफ ARY पे बैठकर एक खत पढ़ता है, रिटन एक लेटर पढ़ता है, जिसमें वो फौज के अंदर जो है वो डिवीजन क्रिएट करने की खुलेआम बात करता है। और ये आपने उसी साजिश की बेस पर, उसी जाल साजी की बेस पर, उसी टैंपरिंग की बेस पर आपने क्या किया? आपने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए, आपने शुहदा पर हमले किए, आपने ECP को कंट्रोवर्शियल बना दिया, आपने सियासी इदारों पे हमले किए, आपने सियासी जमातों के ऊपर हमले किए, आपने पाकिस्तान की सालमियत पे हमले किए। और किस चीज की बेस पर? शैतानी दिमाग के इख्तिरार की बेस के ऊपर।
लास्ट करेंगे। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हक़ाइक़ कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दे। मरियम साहब ये बताएं, जो सियासी खेल जिस सैफर के इमरान खान ने शुरू किया उसी अब साजिश में तो कुछ फंस गए, लेकिन अब वो इस्लामाबाद जलगाह करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो राज्यों को कौन रोकेगा, क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके खिलाफ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके वो, अब भी कर रहे हैं। तो किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं, और इंशाअल्लाह ताला अब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। खत्म होगी ना मेरे सवाल से। अब मुझे बड़ा अच्छा किया याद करा दिया, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैं आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही उस वक्त कौम के सामने कह दिया ये बात, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक है, बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के मेरे बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी खानदान से उसका ताल्लुक है, खुद भी वो अपने जो काशिफ भाई मोबाइल थोड़ा पीछे कर लें यार, उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरे नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट पे बैन लग गया, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी है। तो उन्होंने कहा मैं खुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए किसी तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ आ रही है, आप उसका ऐलान करें। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइन्स निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो है वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से
ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ओन करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमजा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दी। मैं वो नहीं हूँ। मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें। और आपने कैसे उस लफ्ज़ को, ये इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर दिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे। आज ज़रा दोबारा घर जाके उसको उस ऑडियो को ज़रूर सुनिए। मैडम ये बताइएगा